Good afternoon, viewers. I am Gagan Nagpal from Shri Balaji Action Medical Institute. Dear viewers, I am again back on other topic and very interesting and very unconventional and very exceptional topic today we are going to discuss with one of the most prominent pediatrician, Dr. Ashish Sahani. Our topic is today, is your child developing normally? If not, or if yes, we will come to know today from Dr. Ashish Sahani. He is a known practitioner and known pediatrician of having almost 20 years of experience in his field. He is having a very diversifying experience and interest in the child development. Sir, welcome to our this program. Thank you, Gagan. Thank you for your sweet introduction. And this developmental is such a topic that it is a lifelong topic. I think we all develop as long as we live. But child development is something which is, I think, very, very important. And it is something which the earlier we pick up any problems in child development, the better are the results that we see later on. You're right, sir. That is why, sir, today we are giving the understanding to the new parents who are going to become and coming into the shoes of the parents. So that would be a exceptionally a very knowledgeable topic for them. And today we will certainly take the uh, the tips of how to check that how the our child is developing. First, sir, we really want to know that what is child development in your words. What is child development is a very, very diverse topic, I would say. As I said, development तो हम सबकी होती है from the time we are born till we die. I think we all develop, as Gagan has developed into a marketing marvelous genius, as I am trying to develop into a better pediatrician. But when it comes to children, development का main अर्थ या main स्रोत ये है कि बच्चा की डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट कैसे है, बच्चे की मानसिक डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट कैसे है, and so is his cognitive or thinking development, right? So when it comes to development, there are 3 or 4 parameters: speech development, there is physical development, there is cognitive or emotional development, and then there is gross motor development. So we would discuss all these topics gradually throughout the evening. डेफिनेटली सर, आपने हमें ये चीजें बताई कि चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है वो 4 तरीके से जज की जाती है. तो सर फर्स्ट क्वेश्चन सर यही हमारे दिमाग में आता है कि सर व्हाट इज नॉर्मल डेवलपमेंट which you define in your words कि as a parent what we observe or what we think as a the child is developing normal. Yeah. So what is normal development? A very good question from Gagan, I would say. Starting with the basics, from the time a child is born, from the child before he is born, there is development starts from the intrauterine period. We all know that. આજકલ we have serial ultrasounds, and in which the parents are able to see the heartbeat. Then the parents are able to see the child. They're able to see move his limbs. कैसे वो टांगे हिलाता है अल्ट्रासाउंड में. So that is a gradual development. We all see that. ये हमारे सबके subconscious mind में है, but इसको एक development का नाम हमने अभी तक नहीं दिया है. Once the child is born, उसके बाद development depends on the pediatricians, depends on the parents and on the grandparents, on the family milieu. And सबसे important इसमें है parents का role, I believe, and the grandparents, the family, I would say. So how does development happen? Normal development is when a child is born, he starts crying, right? He'll be moving all 4 limbs. चारों हाथ पांव, अपने दोनों हाथ और दोनों पांव हिलाएगा. अगर उसी किसी भी चीज में कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई हाथ पांव हिलाने में डिस्क्रिपेंसी है, रोने में डिस्क्रिपेंसी है, so that is a pointer towards maybe something is wrong somewhere. कहीं पे कुछ गड़बड़ है. Then as the child grows, development happens from cephalocaudal हम कहते हैं. मतलब सर से पैर की तरफ डेवलपमेंट होती है बच्चे की. पहले वो आपने देखा होगा जिनके घर बच्चे हैं और जिन्होंने बच्चों को देखा है, पहले हेड होल्डिंग आती है, पहले आई फिक्सेशन होती है. 2-2.5 महीने में बच्चा पहले आंखें मिलाना शुरू करता है अपने पेरेंट्स के साथ, फिर सोशल स्माइल शुरू करता है. 2-2.5 महीने पे वो हंसता है, मीनिंगफुल हंसता है. एक न्यूबॉर्न बेबी तो ऐसे ही हंसता है, जस्ट ऐसे फेस रहेगा, ऐसे फेस रहेगा. लेकिन 1-2.5 महीने पे बच्चा अपने पेरेंट्स को रिकॉग्नाइज करके एक स्माइल देता है. एंड आई एम श्योर एवरी मदर इज फिल्ड विद जॉय व्हेन दे सी द चाइल्ड स्माइल फॉर द फर्स्ट टाइम. Correct. This is development at 2.5 months.
Then as the child grows, you all see that 3 month के baby को आप rattle दोगे, he'll hold the rattle, then he'll drop the rattle. And this is so much of fun for the parents. वो उनको पता है वो गिराएगा, they keep on giving him the rattle, right? So that is another milestone of development. And so it is from head to toe. उसके बाद head holding आती है. पहले बच्चा अपनी गर्दन संभालनी शुरू करता है, राइट? वो अपना पहले अपना सर ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, आप उसको ऊपर उठाएंगे तो वो गर्दन संभालेगा. At 3 months बच्चे की गर्दन हिलती है ऐसे, राइट? I mean, I hope I'm visible. So जैसे बेबी और 4 months का होगा, आप देखोगे गर्दन ऐसे सीधी हो रही है और वो नीचे नहीं गिर रही. गर्दन को संभाल के रखा हुआ है उसने, ना इधर साइड में हो रही है ना उधर हो रही है. 6 months का बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बैठना शुरू करता है. सो अगर आप इसमें एक पैटर्न देखें, एक गॉड ने या नेचर ने एक बड़ा अच्छा पैटर्न बनाया है कि केफालोकॉर्डल्स आता है, सर से पाँव में डेवलपमेंट शुरू होती है, राइट? पहले स्माइल आई फेस पे, फिर नेक होल्डिंग आई, फिर बैठना शुरू हुआ 6 months पे, एवरेज 6 to 7 months. 9 to 10 months में क्रॉलिंग शुरू होती है, राइट? सो एट दैट टाइम देयर इज मोर एक्टिव नाउ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोअर लिम्स. व्हेन द बेबी इज अराउंड अ ईयर ओल्ड, वो चलना शुरू होता है, पहले खड़ा होना शुरू होता है, फिर वो भागता है, फिर वो चलना शुरू होता है. बाय अराउंड 13-14 months एक नॉर्मल चाइल्ड वुड स्टार्ट रनिंग अराउंड मे बी और वॉकिंग आराम से विदाउट सपोर्ट. Now, as very rightly we were discussing with Gagan before the meet, you know, at 1 till 1 they walk and after that they start talking. And this is so, nature has made it in such a beautiful manner that ये physical attributes जो हैं, जो चलना, दौड़ना, भागना, बैठना, ये पहले 1 साल में it is taken over by the children. And after 1 year of life, when they are in their second year of life, then verbal starts off. ये बोलना शुरू कर देते हैं. ऑब्वियसली पहले बोलना शुरू करते हैं, बाय से नॉर्मल डेवलपमेंट में होगा तो पहले बैबलिंग शुरू हो जाएगी 4 months में, आऊ आऊ करते हैं. एंड दोस आर वेरी ब्यूटीफुल साउंड्स अगेन टू ऑल ऑफ अस, all those who have children or who are going to become grandparents, they love that sound because although that sound is nonsensical but that has its own thrill. You really love that sound. घर में बहुत अच्छा लगता है सबको कि वो बच्चे की कोलाहल है, and they like that. जब बच्चा करीब 9, 10, 11 months का होगा तो वो माँ पापा बाबा, and there's a lot of competition inherently I've seen in clinical practice between the parents. मदर कहेगी ये तो मामा कहता है सिर्फ, फादर कहेगा नहीं ये सिर्फ बाबा ही कहता है. You know, they all want the baby to address them first. Right. And as they become bigger and elder, by 14, 15 months they start saying one word. Mama, papa, pani, mum as we all know is so common with children. I don't know why. So this is how the development happens. Then as you grow older, we all know they start writing, they start scribbling. पहले scribbling शुरू हो जाते हैं by 18 to 20 months. In fact, there is a scientist, there was a lady in the US जिसने 1960s में जो scribbling करते हैं, हम सबकी घरों की दीवारें खराब हो जाती हैं. We all know that. वो crayons लेके बच्चे दीवार पर इधर उधर मारेंगे and हम paint avoid करते हैं कि अभी 1 साल और. Right. There is a lady in US जिन्होंने 60 टाइप की scribbling बच्चों की आइडेंटिफाई करी है कि उनको स्क्रिबल करने का भी, जो दीवार पे क्रेयॉन से मारते हैं, उसके भी एक 55 to 60 तरीके हैं, उसके तरीके भी हैं उनके अलग से, जिससे बच्चे आइडेंटिफाई करते हैं. पहले वो स्क्रिबलिंग करेंगे तो आपकी बाउंड्री लाइन के बाहर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता उनको बाउंड्री का कंसेप्ट समझ आता है, फिर वो बाउंड्री लाइन में है. फिर जब बच्चा करीब 2 साल का होता है वो सीढ़ियां चढ़नी शुरू होता है. पहले वो सीढ़ी चढ़ता है तो हर सीढ़ी पे अपने दोनों पाँव रखेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो फिर एक स्टेप अडल्ट की तरह चलना शुरू होगा. सो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. So in development, हम मोटे तौर में डेवलपमेंट को 3 या 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं मोस्टली. ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव. लैंग्वेज वैसे मैंने आपको बताया बोलना. ग्रॉस मोटर होता है जब बेबी बैठना शुरू करता है, चलना शुरू करता है, उसके बाद सीढ़ियां चढ़ना शुरू करेगा. और कॉग्निटिव इज थिंकिंग. जो थिंकिंग होती है बेबी की पहले सोशल स्माइल से शुरू करेगा और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आपसे बच्चा खेलता है. एक 8-9 महीने का बच्चा भी आपसे एक मीनिंगफुल तरीके से खेलता है, पीकबू खेलता है, छुपन छुपाई जिसको हम कहते थे. तो जो छोटा बच्चा 9-10 महीने का बहुत अच्छा अपने आप को पर्दे के पीछे छुप के या बुक के पीछे छुप के स्टार्ट ऑफ करता है, और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है ये उसकी मानसिक विकास के बारे में बताता है. इसमें उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो चल सके, बैठ सके, नहीं सके, लेकिन ये उसके मानसिक विकास में बताता है कि वो अब समझ रहा है कि अगर मैं पर्दे से पीछे हटूंगा या मैं किताब के पीछे छुपता हूं तो मेरे को कोई देख रहा है, कोई ढूंढ रहा है, और इसी तरह उनका मानसिक विकास होता है. सो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लेट मी टेल यू ओल्ड एज विजडम, आई थिंक अमेरिकन से बेटर हम हिंदुस्तानी हैं. हमारी जो ग्रैंड मदर्स जिनके भी वो पुराने तरीके थे, चाहे वो पालना में झुलाना,
उन्होंने अमेरिकन ने उसको बड़ा अच्छा फैंसी नेम दे दिया, बाउंसर्स बना दिए, रॉकिंग क्रेडल्स बना दिए, करेक्ट हमारे पालने में झूलते थे। अभी भी आप अगर आप देखोगे कि कई क्लासेस में हम लोग बच्चों को पकड़ते हैं तो बच्चे की एक टांग, दो टांगों को, एक टांग मदर के आगे होती है, एक टांग मदर के पीछे होती है। करेक्ट सर। एंड अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने उसको रेकमेंड किया है कि वो बेस्ट तरीका है, उससे बच्चों के हिप्स डिस्लोकेट नहीं होते। आई थिंक, और हम लोग ये सदियों से देखते आए हैं और उसको हमने ही इंपॉर्टेंस नहीं दी, बट आई थिंक आवर डेवलपमेंट इज वेरी वेरी नाइस। वो जो हम झूमर लगाते हैं बच्चों के बेड्स के ऊपर, right? So that is supposed to be cause a lot of visual stimulation, and that is what the Americans are now doing it, maybe in a more sophisticated manner. You know, they have colorful toys और उससे visual stimulation होती है। अब इन सब बातों में जितना मैंने ये बोला, इसमें दो चीजें जो मैंने नहीं बोली है और जो इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो है हियरिंग, सुनवाई, एंड विजुअल। मतलब बच्चा जो देख रहा है वो कैसे देख रहा है, कितना देख रहा है। अक्सर बच्चे पेरेंट्स में से पूछते हैं क्या मेरे को देख पाता है ये 1 महीने का बच्चा? नाउ यू शुड बी वेरी क्लियर, दे आर वेरी शॉर्ट साइटेड। जब वो पैदा होते हैं बच्चे, तो इनका जो देखने का जो विजन का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, जस्ट अ फ्यू सेंटीमीटर्स। एंड एज दे ग्रो by 6 months or so, they can maybe see you at a distance of around say 15 to 20 centimeters also, or maybe even more. So अगर बच्चा आपको एकदम देख के 1 महीने का रिस्पॉन्ड नहीं करता, so please don't jump onto a conclusion that there is something wrong. This is a very normal phenomena. So this is what normal development is, right? And जितने हम ये milestones, I'm sure आजकल बहुत सारी मदर्स गूगल और इंटरनेट पे हमसे ज्यादा पढ़ती हैं। एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि डेवलपमेंट जो है, इट इज अ प्रोसेस which can vary by 2-3 महीने आगे पीछे। अगर कोई बच्चा 5 महीने में भी बैठेगा तो कोई 7 में भी बैठेगा, एंड बोथ आर नॉर्मल। किसी का बच्चा जल्दी नहीं है, किसी का बच्चा उसमें लेट नहीं है, राइट? देयर आर सम रेड फ्लैग्स व्हिच विल कम लेटर ऑन। तो इसलिए अगर आप कोई मदर ये कहेगी ओ उसका बच्चा तो, मेरी देवरानी का बच्चा तो 5 महीने में बैठ रहा है, मेरा तो 6.5 का हो गया, ये बैठता ही नहीं अभी। सो ये नॉर्मल है, वो थोड़ा जल्दी बैठ गया तो ये भी लेट नहीं है, राइट? सो प्लीज माय रिक्वेस्ट टू ऑल द पेरेंट्स इज कि don't get worried, don't get apprehensive or anxious, because comparison बहुत होता है, you know, when you have family में और बच्चे और your friends or circle, they meet and they always come, oh he's walking, my child is not walking, he's talking, my child is not talking. So there's a huge there's a huge what should I say, a time gap in which we have a huge time gap in which to fit in. तो जरूरी नहीं है कि 5 महीने 6 महीने में अगर बैठता था, 6 महीने के 10 दिन हो गए नहीं बैठा तो वो abnormal है, right? So normal development has taken into consideration lot of these parameters. Thank you sir, आज आपने इतनी important चीजें हमें बताई कि जिनको हम शैतानियां समझते हैं बच्चों की, वो बेसिकली पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट है और उसे डिस्करेज नहीं करें। उसमें वो अपनी मोटर स्किल्स उन्हें अपनी पता चलती है, अपनी डेवलपमेंट्स की कई ऐसी चीजें पता चलती हैं और अपने शरीर को वो बैलेंस देते हैं, ताकत देते हैं उन चीजों को। उनको शैतानियां नहीं समझें, बल्कि वो एक डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। Am I correct, sir? Right, very true, very rightly said. And I think family plays the most important role in this. Yes. Because जितने लोग इंटरेक्ट करते हैं, जितने आसपास लोग रहेंगे, जितना भी बच्चे से बातें करेंगे, खास करके छोटे बच्चे में, उतना ज्यादा the development happens faster and better. सर हमसे मिसेस मल्होत्रा हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछ रही हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन का तो जवाब आपने दे दिया है कि सर व्हाट इज द नॉर्मल एंड एबनॉर्मल डेवलपमेंट। तो आई थिंक सर मिसेस मल्होत्रा को नॉर्मल डेवलपमेंट का तो जवाब पता चल गया है। एबनॉर्मल डेवलपमेंट किसको कहते हैं सर, उसके वो एक बार आप बताएं सर। I will tell you this also, because now when it comes to abnormal development, जैसे मैंने कहा कि please don't draw a line कि 5 months में बच्चा नहीं बैठा या 6 months में नहीं बैठा तो वो abnormal हो गया। हमारे पास बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, but at the end of the day we draw a line somewhere कि yes, now this is abnormal. Now is the time जब आपको एक pediatrician को या एक developmental pediatrician को consult करना पड़ेगा, because ये अब abnormal हो रहा है। Something which is abnormal, I'll go by months and years, Gagan, if you permit me. Yeah, certainly, sir. So, like you take a 3-month-old child, a 3-month-old child will not roll over. ठीक है, वो एक तरफ से दूसरी तरफ करवट नहीं बदलता। अगर वो बदल रहा है अपने आप, so उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नॉट कि हमेशा हो, क्योंकि इसका मतलब वो अपनी बॉडी को बहुत रिजिड कर रहा है, बहुत अपनी बॉडी को टाइट कर रहा है और वो घूम रहा है।
सो उसमें हाइपरटोनिया हो सकता है, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि टोन हाई है, इसलिए वो नहीं, यू नो, ही इज टर्निंग बिफोर टाइम. नॉर्मली रोलिंग ओवर या टर्निंग होती है 7 मंथ्स, 6 to 7 मंथ्स में. अगर पहले हो रही है तो कई लोग बहुत खुश भी होते हैं कि हमारा बच्चा तो टाइम से आगे चल रहा है. पर आपको फिर भी एक पीडियाट्रिशियन को अपने जरूर ये क्वेश्चन करना है जब भी आप जाओ कि क्या ये नॉर्मल है. दूसरी चीज है फिस्टिंग. अगर 3 4 4 महीने के बाद बच्चा अपने अंगूठे के अंदर ऐसे रखता है, अपनी फिस्टिंग करता है, अंगूठे को अपने हाथों के अंदर रखता है, तो वो ये एक एबनॉर्मल साइन हो सकता है न्यूरोलॉजिकली. अगेन बी अवेयर, कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन और अ डेवलपमेंटल पर्सन. सेकेंडली इज विजन. अब वी ऑल नो कि जैसे हम आंख मारेंगे, हम, यू नो, एज सुन एज यू ब्रिंग योर हैंड टू द फेस, योर आईज विल ब्लिंक. हम नॉर्मल है, इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन. इफ द चाइल्ड इज नॉट डूइंग दैट एट से 4 months or 5 months of age, इट इज टाइम यू कंसल्ट द पीडियाट्रिशियन एंड आस्क हिम, भाई एक बार विजन के बारे में यू शुड बी क्लियर. Same is for hearing. We all know that they all hear. They hear from day one. सुनवाई day one से आती है. अब 1 महीने के बच्चे को आप कैसे बता सकते हैं कि करेगा नहीं करेगा? अगर 1 महीने के बच्चे को आप जोर की दरवाजा बैंग करते हैं तो एकदम चौंक जाएगा, चुप हो जाएगा, या अगर वो चुप है तो एकदम रो पड़ेगा आवाज सुन के. सो ये सब बताता है कि वो सुनाई दे रहा है. अगर ये रिएक्शंस नहीं आते हैं 3 months 4 months तक, then it is time that we should consult a ENT specialist or your pediatrician and make sure कि hearing is normal. इसीलिए we at Balaji Action do a hearing screening on every child from the before they are discharged at birth. चाहे वो 1 दिन रहता है नॉर्मल डिलीवरी है या 2 दिन रहता है सिजेरियन है, वी मेक श्योर एक प्रिलिमिनरी हियरिंग स्क्रीनिंग जरूर हो, ताकि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है सो वी आर अवेयर. इट्स अ रेड फ्लैग फॉर अस दैट वी शुड नो कि नेक्स्ट टाइम आफ्टर 1 month एक रिपीट स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है. Right? Same way, when it comes to red flags, say at 6 months of age, if he is not able to reach objects, आप normally एक 6 months के बच्चे को अगर आप खिलौना रखेंगे, he'll try to reach for the tractor, उसको उठाएगा और अपने पास देगा. अगर वो नहीं कर रहा है, तो it again means something is wrong, कि वो हाथ ही नहीं हिला रहा. अगर बच्चा एक हाथ 2 हाथ नहीं हिलाता है, एक हाथ केवल बार बार हिला रहा है, तो उसका मतलब है कि हो सकता है दूसरे हाथ में स्ट्रेंथ कम हो. So that again is a red flag. That again is abnormal development. Same way, if the child has no social response at all at 6 months, there is no social smile, he is not responding socially to you, that means he needs more stimulation. He is not stimulated enough. He is emotionally a little piche, right? Because emotional normally we come to know more after 1 year of age. Same way, अगर आपका babbling absent है, अगर बच्चा आ वो भी नहीं बोल रहा है 6 months तक, so that means there's again something is wrong and there's something abnormality is there. If he's not using even one word by 1 year of age, normal बच्चा 1 साल का 5-6 words बोल लेते हैं कई लोग, मामा पापा मम दे दे. और अगर एक वर्ड भी नहीं बोल रहा है, that's a red flag. You have to be careful that when it comes to 1 year of age, your child is not even speaking one word, you need to consult. You need to be a little aware. Secondly, by age of say 15 months or 2 years rather, if he's not even speaking 15 to 20 words by 2 years of age, I'm saying. So please be aware, again consult the doctor. Same way, if he's not able to sit without support by 9 to 10 months of age, आप normal sitting कब आती है? Normal बच्चा बैठता है at say 6 months, he starts sitting थोड़ा पहले support के साथ, चाहे वो पिलो की support होगा या मॉम ऐसे पकड़ेंगी, मॉम की अपनी बैक की support लेगा. But as the child grows and by 8-9 months, you will find most children are sitting without support. आराम से बैठ जाएंगे, आप बिठाएंगे और वो खेलेंगे रैटल के साथ, आपके साथ खेलेंगे, चम्मच से अपना कुछ सेरेलैक निकालेंगे, खिचड़ी निकालेंगे और गिराएंगे, खाएंगे. But अगर 9 या 10 months तक बेबी नहीं बैठ रहा, that's a red flag. You have to consult your pediatrician and get your doubts removed. And same thing happens when it comes to walking. If walking does not happen by 18 months, as I have told you in my first अभी 10 मिनट पहले कि please don't go by average. आप बुक्स में पढ़ोगे, नेट में देखोगे, लिखा होगा walking 12 months, 1 year. And हमने देखा भी है कि 12 या 13 महीने तक बहुत सारे बच्चे चलना शुरू कर देते हैं, पर कहीं थोड़ा डिले हो सकता है. तो अगर वो बच्चा 15 महीने में भी चलता है तो वो भी हमारे लिए ठीक है. लेकिन अगर 18 months 20 months हो रहे हैं, नहीं चल रहा अभी भी, then that's a red flag that you need to consult a doctor. So these are some of the red flags. There's a huge list. I can't go into everything, but these are मोटे तौर में जिसके लिए आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए. नहीं सर, बिल्कुल सर. there are many more things, but viewers, आप ये ना सोचे कि हम टाइम की कमी की वजह से कवर नहीं करेंगे. हम हर चीज कवर करेंगे व्यूअर्स, और डॉक्टर सानी से हम इन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझेंगे
Dr. Sahani is a unit head of pediatrician unit in Shri Balaji Action Medical Institute, and he is always available on Tuesday and Friday 9 to 4. So do not worry, sir is always catchable. And today we want to know some more things from the Dr. Ashish. And sir, our next question from one viewer, sir, she has or he has not mentioned the name. Uh, they said, ki, sir, our child is almost 20 months old and does not talk. So what should I do? Yeah, now Gagan, Is it a development is relevant question, sir? very, very relevant in today's scenario. We see lots and lots of children, I don't know why, who are late talkers, जो बहुत late बोलते हैं, अच्छी right? बात नहीं है ये. I think when it would come to wives, बड़ी अच्छी बात थी. अगर wives late बोलती तो बहुत अच्छी बात थी. But with So all it due is apologies to the female audience. so it is a very important thing, it means. Yeah, it is very important because it can be a cause of concern and it cannot be a cause of concern also, right? Okay. I'll tell you why. हम डेवलपमेंट को हमेशा इन टोटलिटी देखते हैं, राइट? अगर बच्चा सपोज करिए आपका चलना शुरू बैठ रहा है 6 months पे, ही से वॉकिंग एट से 1 year, राइट? And he's emotionally, you feel he's very good, he plays with you, he smiles with you, and he's finger pointing say at 13 months, उसको कुछ चाहिए, वो बोल नहीं पाता है, लेकिन वो आपसे कम्युनिकेट तो कर रहा है. Basically, what is talking? Like I am talking to Gagan and Gagan is talking to me, we are communicating, right? Yeah. If you can't talk, there are, sorry to say, but some challenged children, like who have hearing impairment, deaf and dumb, as you say it in your language, they can't talk, but they communicate, right? They communicate by sign language, they communicate by lip syncing. So if a child is not talking, but he's communicating, suppose I have a child at home, उसको पानी चाहिए, he's not talking, but he's maybe dragging my trousers, he's taking me there, or he's finger pointing me कि उस jar में there are some cookies, I want those cookies, right? Or he wants to play a toy with me, he gets the toy, या वो मेरे को ball फेंकता है और ball वापस खेलो. So these are ways of communicating. So talking is also a way of communicating. If a child is not talking at 20 months, there is no doubt he's a little late. But if he's communicating to you and his other milestones are okay, you don't need to worry so much, right? But if your child has a history of delay in all parameters, say if he's walking late, if he's talking late, if you're say sitting at 10 months and he was walking at say 15 months or 20 months, and then there is also a speech delay. So that what we call is a global developmental delay. Global का मतलब होता है कि किसी भी 2 parameters में delay चल रहा है. Speech में चल रहा है, gross motor में चल रहा है. Gross motor means walking and sitting. So then that is a cause for concern. In that case, you should consult your pediatrician or a developmental pediatrician पहले earlier. No, why do we say early? लोग कहते हैं बहुत कॉमन है ये, दादी नानी कहेगी वो नहीं पापा भी लेट बोला था, कोई बात नहीं, भाई 2 साल में बोला था. That can be a fact also. Genetic late talkers होते हैं, पापा लेट बोला था, बच्चा भी लेट बोलेगा. बट हम क्यों इतने पीछे पड़े रहते हैं पीडियाट्रिशियन? नहीं एक बार दिखा दो, डेवलपमेंटल वाले को दिखा दो. स्टिल देयर इज अ ड्रॉप आउट रेट ऑफ 50%. 50% विल कम, 50% कहेंगे नहीं दादी ने कह दिया था, कोई बात नहीं. बिकॉज हमें फर्स्ट 2-3 years ऑफ लाइफ में मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट है. जो लोग नॉर्मल पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं उनको पता है कि हम लोग हर बार बच्चे का सर का नाप लेते हैं, सर्कमफ्रेंस लेते हैं, हेड सर्कमफ्रेंस. व्हाई? बिकॉज द हेड सर्कमफ्रेंस, यू जस्ट इमेजिन, increases almost by 10 to 15 centimeters in the first year of life. मतलब ब्रेन ग्रोथ इतनी स्ट्रांग है. और अगर हमें कुछ इंटरवेंशन करनी है, हमें कुछ ट्रीटमेंट करना है, दिस इज द राइट टाइम. प्लीज डोंट डिले इट. सो 20 months में अगर वो वैसे आपके साथ बिहेवियर नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, अगर फादर की हिस्ट्री ऑफ डिलेड स्पीच है, सो यू कैन रेस्ट अश्योर्ड देयर इज नॉट मच ऑफ एन इशू. बट यू शुड ऑब्वियसली कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन. बट अगर सब चीजों में डिले है, you're getting my point. If suppose he's walking late or you're talking late, you're sitting late, then there is some issue on the hands and that needs to be addressed as early as possible and as fast as possible. Because therapies are such that they take time to act, but ये age group ऐसा है कि इसमें हम encash करते हैं developing brain के ऊपर, right? And that is of great help to us. I think sir, हमारे पेरेंट्स को या व्यूज को इस चीज का जवाब मिल गया होगा कि अगर जिनसे सर ने बोला कि ग्लोबली अगर डिले है तो डेफिनेटली यू शुड नॉट डिले टू मीट टू योर पीडियाट्रिशियन, और अगर उससे कम है तो यू कैन सी एज ए जजमेंटल, बट सर्टेनली डिस्कस विद योर पीडियाट्रिशियन. एम आई करेक्ट सर? या वेरी राइट सर. आपने शायद जवाब तो दे दिया है. देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम ए व्यूअर
Is abnormal development hereditary? I think that would not be the answer. It is not hereditary. That is for sure. Until we see something in the family happening. Obviously, if there's a history of mental retardation in the family, if there's a history of some syndrome in the family, then हमारे कान चौकन्ने होने चाहिए. Suppose there are some risk factors now. Let me put it very straight. Some risk factors are there which are not hereditary, I would say, but which, if a child has those risk factors, then we need to be very, very careful. One, अगर बच्चा preterm पैदा हो रहा है, we have delay problems more in children who are 20. We are geniuses हो गए हम लोग सब, भगवान से कुदरत से लड़ते हैं. हम 26 हफ्ते के बच्चे को भी बचाते हैं. जापान में 22 वीक्स को भी बचाते हैं. ठीक है, 22 वीक्स इज जस्ट 4.5 months. बच्चा 2-3 महीने नर्सरी रहते हैं. लेकिन दिस इज ऑल्सो this cohort less than, I would say, 30 weeks or less than 31 weeks is a cohort जहां पे we have lot of developmental issues because brain had not developed. Baby तो बाहर आ गया, अभी तो उसको मदर के एनवायरनमेंट में ककून रहना था. ये केम आउट, नाउ देयर इज लॉट ऑफ स्टिमुलस. बाहर नर्सरी में आ गया, शोर होता है, नर्सरी में भी बातें होती है, नर्सरी में लाइट होता है, नर्सरी में साउंड होता है. दीज ऑल वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स अफेक्ट. देयर इज अ होल गाइडलाइंस फॉर साउंड एंड नॉइस इन द नर्सरी एंड लाइट इन द नर्सरी कि इतना डेसिबल से ऊपर नहीं होना चाहिए, रात को लाइट स्विच ऑफ होनी चाहिए. सो ये जो बच्चे हैं जो प्रीटर्म्स हैं उनके ऊपर डेवलपमेंट में बहुत ध्यान देना है. जिनकी consanguineous marriage है, you know, children, wherever you have children born of parents who are related to each other already, like we have it in some societies. So those children have very high chances of developing syndromes and they can be very at risk for delayed development or developmental problems. Children जिनको first month of life में अगर infections हो जाते हैं ज्यादा severe वाले, जैसे meningitis हो गया, brain fever हो गया, या repeated sepsis हो गया, they are at risk for brain problems. और children जिनको intrauterine हमें लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट में ही प्रॉब्लम्स आ गई है, उनको इश्यूज हैं. डाउन सिंड्रोम्स हैं कई, जैसे डाउन सिंड्रोम है, सबने देखा होगा, मंगोलियन बच्चे होते हैं, वेरी प्लेफुल, but they are the ones who have problems in delay. So it is not hereditary, but if there is someone in the extended family who has a problem, then you should be very sure that you need to at that time keep these children under watch. और under watch कैसे है? जब भी आप इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं अपने पीडियाट्रिशियन के पास, 3-4 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट: वेट, हाइट, और एक चीज जो कई जगह मैंने देखा मिस होती है वो हेड सर्कमफ्रेंस है. सर का नाप बहुत जरूरी. सेकेंडली, पेरेंट्स हैव टू बी क्वेश्चन्ड बाय द पीडियाट्रिशियन एंड इवन पेरेंट्स शुड क्वेश्चन देयर पीडियाट्रिशियन कि मेरी चाइल्ड की डेवलपमेंट अभी तक नॉर्मल है कि नहीं है. कहां पे आपको डाउट लगे, जैसे मैंने कहा, डेवलपमेंट इज नॉट अ वन, यू नो, इट इज अ होल गैमेट ऑफ, इट्स अ स्पेक्ट्रम, राइट? ऐसा नहीं है कि एक चीज खराब है तो सारे कुछ खराब है. सो आपके पास अगर वो आ रहा है पीडियाट्रिशियन के पास बच्चा, और पीडियाट्रिशियन को लगता है कि अगर कुछ इस बच्चे में एक चीज में कुछ इश्यू लग रहा है, आई थिंक ही शुड पुट अ स्टार ऑन द इम्यूनाइजेशन चार्ट और डू समथिंग, ताकि नेक्स्ट विजिट में अगर आप 10 बच्चे 15 बच्चे रोज देख रहे हैं, आपको याद नहीं रहेगा उस बच्चे के बारे में, तो नेक्स्ट में अगर आपने कोई स्टार लगाया हुआ है तो आपके लिए एक कोड बनता है कि यस, आई हैव टू कीप एन आई ऑन दिस चाइल्ड. अगर इसको थोड़ा भी डिले है तो मैं फिर एमआरआई कराऊं, सीटी कराऊं, या कुछ टेस्ट कराऊं, विजन हियरिंग टेस्ट कराऊं, एंड डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास रेफर करूं. आई थिंक सर ये सर इतनी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है एज ए पेरेंट्स जो कि उनको नहीं मिल सकती क्योंकि इसके लिए कोई क्लासेस नहीं है सर. ये आज हमसे पता चल रहा है कि डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट इज ए फुल सब्जेक्ट. एंड सर हम ये जानना चाहेंगे कि सर अगर ऐसा कुछ है तो व्हेन शुड वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट फॉर द डेवलपमेंट डिले? Yeah, see, the treatment, as I said, is as early as possible. ASAP, as they say. आजकल जो word चला हुआ है, ASAP. ASAP means really as soon as possible. In fact, now what we say is कि therapy is more important than even diagnosing it. अगर suppose करिए कि एक बच्चा लेट चलता है, he is not walking say 10 months, 11 months. There are many reasons for it. हो सकता है cerebral palsy हो सकता है खाली हाइपोटोनिया हो, टोन कम हो. आप जैसे ही आप ये स्टार्ट करें, डायग्नोस होता है बच्चा, उसके लिए एमआरआई होगा, न्यूरोमेटाबॉलिक टेस्ट होंगे, लेकिन आप साथ साथ उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भेजिए. फॉर्चुनेटली दिल्ली हैज, आई थिंक, नॉट लेस देन 30 to 40 पीडियाट्रिक ओटीज नाउ.
pediatric OTs, occupational therapists. We have one in our hospital also, Dr. Shweta Wadhwa. So they should start therapy ekdam, treatment. Not even waste 1 or 2 months in diagnosing it. कि ये क्यों है जो रीजन है, अगर उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है जो बहुत कम में होता है, वो कैन बी डन, वो होता रहेगा, लेकिन आप थेरेपी जो एक्सरसाइजेज है वो तुरंत स्टार्ट करिए और उसमें कोई ढील नहीं बरतनी चाहिए. इट शुड बी डन एकदम एज फास्ट एज पॉसिबल. ओके, यानी एक दिन का डिले भी हमारे लिए लूजिंग ऑफ टाइम के बराबर है. या वी शुड नॉट डिले इट. सर, देयर इज मिसेस रजनी गुप्ता, शी इज आस्किंग, इज माय चाइल्ड इंटेलिजेंस इज नॉर्मल even if we start walking at the 18 months? They're very different questions. I don't know what relevance of these questions are, but this has been asked by one of the viewers. Yeah, this is a very, very, I would say, a very nice question and a very intelligent question to ask, because what happens is that, as I said, development has gross motor, fine motor, language and social, and cognition. Cognition is thinking, दिमाग कितना काम कर रहा है. We are all famous with one very famous scientist, Stephen Hawking, if you remember, जिन्होंने यूनिवर्स के ऊपर बहुत किताबें लिखी थी. He developed a disease at 22 years of age called ALS, but his brain was normal. He became bedridden, wheelchair bound थे. बहुत लोगों ने शायद देखा होगा उनकी photographs. He died. You just imagine, he was wheelchair bound. बाद में वो बोल भी नहीं पाते थे. He used a vocal synthesizer. लेकिन दिमाग माशाल्लाह was too good. Right? He was a genius when it came. So फिजिकल डेवलपमेंट अगर डिले है या फिजिकल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा मंदबुद्धि है या वो मेंटली रिटार्डेड है या वो स्लो है. इन एवरी केस ऐसा नहीं होता है. इन सम केसेस इट हैपेंस, बट नॉट इन एवरी केस. राइट? सो फॉर दैट यू नीड टू कंसल्ट अ पीडियाट्रिशियन, बिकॉज लॉट ऑफ चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पॉल्सी इज हैपेंस. अगर डिलीवरी के टाइम को दिक्कत हो जाती है, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, कई बार वो बच्चे चल नहीं पाते हैं, टाइटनेस होती है नीचे टांगों में, उनको शूज बनवाने पड़ते हैं, स्पेशल कैलिपर्स बनवाने पड़ते हैं, लेकिन ब्रेन वाइज दे आर वेरी नॉर्मल. राइट? सो वी डू समथिंग कॉल्ड डीक्यू, डेवलपमेंट क्वोशिएंट. एक आईक्यू सबने सुना हुआ है शायद, आईक्यू उसकी इतनी तेज आईक्यू है. ना आईक्यू जो टेस्ट होता है वो 5 साल की उम्र के बाद होता है, वो इंटेलिजेंस बताता है. लेकिन अब एक 18 महीने या 20 महीने या 2 साल के बच्चे की आप आईक्यू नहीं करते, एक डीक्यू होता है, डेवलपमेंट क्वोशिएंट, व्हिच आई डू. एंड उस डेवलपमेंट क्वोशिएंट या डेवलपमेंट असेसमेंट के बेसिस पे वी कैन टेल whether how good is his intelligence. So the answer to this question is both easy and difficult. Difficult in the sense that without seeing a child, I cannot say कि अगर वो चलता लेट है तो वो प्रॉब्लम है. बट अगर वो लेट चलता है उसका मतलब ये भी नहीं है कि he might be, you know, bad when it comes to mentally. He could be very, very good in fact mentally. तो इसका मतलब कि किसी भी चीज पर आप प्री जजमेंट ना लें, हमेशा अपने पीडियाट्रिशियन से बात करें. और इसमें भी एक स्पेशल फील्ड है, डेवलपमेंट pediatrician with a special interest in the child development. Am I right, sir? Yeah. I mean, someone who's more into development will be able to pick up. You know, we have a lot of diseases coming in now. We have a lot of autistic children. Autism, I get referrals from a lot of pediatricians, especially for autism and hyperactivity. अब both of these are cognition, मतलब ये दिमाग से सोचने वाला और behavioral issues हैं. इसमें फिजिकल मोटर माइलस्टोन्स बड़े नॉर्मल होंगे. बच्चा चलता नॉर्मल है, बच्चा ने लेट खाना ठीक टाइम पे शुरू किया, सब कुछ है, लेकिन बाद में बिहेवियरल इश्यूज आ गए. सो अ डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन वुड एनी डे बी अ बेटर पर्सन टू जज और टू पिक अप द फाइनर न्यूएंसेस एज कंपेयर्ड टू अ. थैंक यू सर, आज आपने हमें चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में इतने कम समय में इतनी जानकारी दी. आई थिंक दिस विल बी द वन ऑफ द माइलस्टोन टेलीकास्ट ऑफ आवर फॉर आवर व्यूअर्स. And I really thank you for being with us. And if viewers have any more questions, they can put in our chat box, and Dr. Ashish Sahani will give the answers of that. And he's always available on Tuesday and Friday, 9 to 4. You can meet him in 8151 room number. And for any queries, you can give us give your question in our chat box. Thank you, sir. Thank you for being with us. Thank you, Gagan, for the opportunity. Thank you so much. And we request. I hope I was useful. Sir, certainly, sir. For the newly become parents, this is the milestone information which you have shared with us, and we request you to give us some more time to discuss on some more pediatric diseases, sir. Yeah, certainly. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot, sir.